Okay, now the plane, equation of plane. Plane is a surface of definite of some specific length and but negligible thickness. ऐसी surface having negligible thickness is called plane. For example, the page of your copy is one of you can see for understanding, समझने के लिए. Suppose this is the plane. For equation of plane, you need two things. Number one, points on plane. Number two, normal vector to the plane. See, plane is a combination of infinite many points. बहुत से infinite many points को मिलाएं तो फिर एक plane बनेगा. Normally हो. Any vector perpendicular to the plane is called normal. ये plane का normal है. So if you want to the equation of plane, so you need point and the normal. Suppose there is a point on the plane. Fixed point x1, y1, z. And there is a general point on the plane x, y, z. So this vector p1p will lies on the plane. ये प्लेन के ऊपर एक वेक्टर होगा. अगर इस वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो यूँ लिखेंगे. p1p वेक्टर को हम यूँ लिख लेंगे. What is p1p वेक्टर? p के कोऑर्डिनेट्स में से p1 के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे. x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस. फिर ब्रैकेट की नोटेशन में ये लिख लेंगे. इफ यू वांट आई जे के तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं. आई जे एन. So this is a vector on the plane. Suppose this is a normal vector. This is a normal. It is not really have a point P to it. Is not necessary. It is at point. It will be at any point. So this is a normal vector. It will be here, here. Or it is a normal vector. Normal is always perpendicular to the surface. Why the normal is necessary? Because when you are interested in equation of the plane, जब आप equation of plane निकालने में interested है, तो आपको इसकी direction भी तो बतानी है ना plane की. ये normal vector का role ये है कि it gives the direction of the. ये plane की direction बताएगा कि इस plane की क्या direction. So normal is for the direction. जैसे vector A equation of lines की direction बताता था, उसके direction को signs होते थे. तो ये normal vector ये plane की direction बताता है. क्योंकि इस plane की वही direction है जो इस normal की. So normal is basically the direction of it. So please see the next. This is a vector. So this is a normal vector. Suppose this is a normal vector. This is a normal vector perpendicular to the plane. Let's suppose this is a vector. Normal vector is a vector. Suppose its component is A, B, and A1, A2, A3. This is a component of the vector. So what is normal? Normal vector is a vector normal to the plane, perpendicular to the surface to the plane. What is its role? It gives the direction of the plane. The direction of the plane is the direction of the normal. So this is a normal. See, if you apply the vector analysis, both the vectors are perpendicular because the normal is here. This is your normal. That is normal to the. ये plane के normal है. This is normal to the plane और दूसरा जो vector है वो along the plane. दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा. So both are of 90 डिग्री. दोनों 90 डिग्री. This is the situation. So ये दोनों के दरमियान ये वेक्टर और इसके दरमियान, क्योंकि ये वेक्टर तो along the plane है, कुछ ये है, और ये वेक्टर इस तरह परपेंडिकुलर है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, क्लियर होगी बात? एंड दिस एंगल इज ऑफ 90. Clear?
सो इसका मतलब है दोनों के तो मैंने अगर एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज फ्रॉम फिगर, अगर आप डायग्राम्स फ्रॉम फिगर देखें तो P1 P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N1, दोनों परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो हमने पढ़ रखा है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। See, this is along the plane, this is normal to the plane, the plane के normal, so having 90 degree angle, so it means the vectors are perpendicular. So yes it is normal to the plane, दोनों के मैंने एंगल 90 डिग्री का, so डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो दो वेक्टर्स हैं आपके पास उन दोनों का, पहला वेक्टर ये था x minus x1, y minus y1, z minus z1 डॉट a1 a2 a3 इक्वल टू 0, डॉट लगे आई वाले को आई से कर दिया, a1 इंटू एक्स माइनस एक्स, a2 इंटू वाई माइनस वाई, a3 इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप इसको कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज equation of plane through x1 y1 z, x2 y2 z, sorry, passing through point this having normal vector n, a1 a2 a3, ये प्लेन, ऐसा प्लेन जो पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है और n उसका नॉर्मल वेक्टर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, a के कंपोनेंट नॉर्मल के कंपोनेंट a1 a2 a3 है, पॉइंट के x1 x2 तो a1 इंटू एक्स माइनस एक्स, a2 इंटू वाई माइनस वाई, a3 इंटू जेड माइनस। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बट हम इसी को यूज करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point having normal vector n। अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, वेरिएबल्स वालों को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लें तो देखिए ax1, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है as a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू। तो आप इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, b को भी कर दें, c को भी कर दें, ax plus by plus cz is equal to ax1 plus by1 plus cz। ये सारा कांस्टेंट है, इसका नाम हमने d रख लिया। सपोज दिस इज योर d, so this is called the general equation, ay plus cz is equal to जनरल इक्वेशन। हम इसको यूज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए वी नीड टू थिंग्स, अ पॉइंट ऑन द प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन। इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 19, what is the question number 19? 19 to 26 are same. There is a point on the plane in 19, p of 6 minus 7 is 4. This is a point on the plane. And plane is parallel to x, y plane. This is your plane. Suppose this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. Means z-axis, when you say over plane is parallel to the xy plane, it means the z-axis is normal to the plane. आपने कहा, उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमारा प्लेन जो है वो xy प्लेन के पैरेलल। चलिए मान ली अगर ये xy प्लेन के पैरेलल है तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि जो z एक्सिस है वो आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा प्लेन।
Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा ना XY प्लेन के ऊपर बाय डेफिनेशन। तो अगर Z एक्सिस परपेंडिकुलर तो Z एक्सिस नॉर्मल वेक्टर बन गया। अब Z एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? K होता है। K को आप कैसे लिखते हैं? 0 0 1, ये है ना यूनिट वेक्टर 0 I 0 j, ये K है ना, जिस I भी 0 J भी 0 K की वैल्यू है। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन गया। पॉइंट उसने दे दिया आपको 6 -7 and 4. So you have a point x1 y1 z1, you have normal vector a1 a2 a3. So this is the equation of plane. A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. a क्या आ गया 0, x minus x1, b क्या आ गया 0, y minus y1, c क्या आ गया 1, z minus z1 equal to 0. Z minus 4 is equal to 0. So Z is equal to 0. So this is the equation. When the plane is parallel to XY plane. कि आपका प्लेन अगर आपने 3 एक्सिस ड्रा किए सपोज किया, आमतौर पे आप यूँ करते हैं x एक्सिस y एक्सिस z. So this is your x axis, this is your y axis, this is your z axis. So this is the plane he is talking about. ये बेस वाला इसके ऊपर पॉइंट उसने दे दिया हुआ है। क्या पॉइंट है? 6 -7 and 4. तो ये n जोन है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा z एक्सिस। z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k होता है, यानी कि ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा 0 0 1. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट को समझना है। तो प्लेन के लिए चाहिए दो चीजें, पॉइंट और एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल, जो प्लेन की डायरेक्शन का। अब उसने कहा हुआ XY प्लेन है तो इसका मतलब Z एक्सिस जोन है वो नॉर्मल है। अगला पार्ट में देखिए P पार्ट। पॉइंट यही है लेकिन सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी। यही डायग्राम है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। अब क्या बात कर रहे हैं? किस प्लेन की बात कर रहे हैं? प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ये YZ प्लेन ये आ गया। अब प्लेन ये, अब YZ प्लेन है आपके पास, इसकी इक्वेशन निकालिए। इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया उसने, कहा ये पॉइंट, तो इसका मतलब YZ के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? X एक्सिस होता है। जो YZ है तो X एक्सिस फिर इसका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब x एक्सिस नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा इसका। अब x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? I होता है। n इज इक्वल टू I। I का मतलब है I प्लस 0j प्लस 0k। सो उसे आप यूं भी लिख सकते हैं 1 0 0। सो दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, दिस इज योर पॉइंट x1 y1। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1 plus c into z minus z1 equal to 0. This is your x n a1 a2 a3. This is your x1 y1 z1. This is over a1 a2 a3. Just substitute. Just plug in the values in the formula. You have 1 into x minus x1, b0 c0. So these components are 0. So x minus 6. b भी 0 है, c भी 0, तो ये दोनों 0 हो गए। a हमारे पास 1 है, x minus x1 6 है, तो ये दोनों x minus 6 is equal. This is a required equation, और x is equal to 6 दोनों 0. Similarly in third part YZ plane, नॉर्मल वेक्टर क्या बन जाएगा? YZ प्लेन है तो y और z, ये हमारे पास क्या था? YZ था, दूसरा है XZ प्लेन, तो y एक्सिस परपेंडिकुलर, उसको देखने का ही। तो थर्ड पार्ट, this is the third part. This is your XY plane. Point is there. XZ plane है तो Y axis आपका नॉर्मल है। नॉर्मल Y axis के लॉन्ग क्या होता है कंपोनेंट? We know very well that the J component is J unit vector is along Y axis. So this is your normal. 0 I J plus 0. This is normal vector. This is point. Write the equation of plane.
a into x1 b into, and substitute them to have our equation. 20 सेम है, 20 में उसने खुद ही आई जे के दे दिया ना, वही 19 को रिपीट कर दिया। 21 पढ़े, क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट, पॉइंट भी दिया हुआ है एंड नॉर्मल वेक्टर इज ओ पी, ओ ओरिजिन होता है तो ओ पी वेक्टर बना लेना, ओ के कंपोनेंट 0 0 होते हैं, पी ये दिया हुआ है, सो नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, इक्वेशन लिखें और उसमें वैल्यू पुट करें। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देख लें सब लोग, बुक्स होनी चाहिए सबके पास प्लीज। पेज 896, क्वेश्चन नंबर 21 रिगार्डिंग द इक्वेशन। What is the statement of? Find the equation of plane that satisfy the condition. Through plane is passing through this point and is parallel to this plane. हमारा plane इस plane के parallel है. Try to understand this place. Suppose we have two planes. For example, suppose here we have the two planes. One plane is this one plane is this. ये दो प्लेन क्लियर नहीं हो रहा आपको ना, क्लियर नहीं। Suppose one plane is this one, other plane is this one. So we have two planes. जैसे आप अपनी बुक को खोलें ना, बुक के दरम्यान में एक लाइन होती है पेज की, तो वो इस तरह आप पूरी बुक को खोल लें तो वो आपके पास, या फिर आपकी कापी या उसको ओपन करें तो आपके पास पूरे का पूरा जो है वो प्लेन बन जाएगा। मतलब आप किसी भी लीफ को ओपन करते हैं जब पेज को, तो देखें ये दरम्यान में लाइन। तो अगर आप उस कापी को इस पोजीशन में रखा हुआ था, एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया, हमारे पास ये दो प्लेन बन गए। ठीक है, क्लियर होगी बात? देखिएगा प्लीज। तो ये दो प्लेन है, ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल। दो था, क्लियर होगी बात सब लोगों? ये एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया, एक दूसरे प्लेन। तो वी हैव टू नॉर्मल वेक्टर, एक प्लेन का नॉर्मल है, दूसरा दूसरे प्लेन का नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन। दोनों प्लेन के नॉर्मल। ये अब आपके कैमरे में क्लियर होंगे, तो दोनों के प्लेन के नॉर्मल क्लियर होगी। जब प्लेन पैरेलल होते हैं तो याद रखें उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। अगर आप इस पे मैं दो प्लेन बना लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ एक प्लेन ये है P1 और एक प्लेन ये P2, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं। ये इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया ये इस प्लेन का, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिया, ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स। अब क्योंकि प्लेन पैरेलल है इसलिए नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल हैं। सो अगर आपको इस एक नॉर्मल वेक्टर पता है तो इफ यू नो द वन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स एज द प्लेन्स आर पैरेलल, सो दे हैव their normals also parallel. If one of the normal vector is known, we can say the other one is, we can find the other one by using the condition of parallel vector. Or you can take the other one same as it is this. When two planes are parallel, they have the same normal vector. They have the parallel normal vector. They have the same normal vector. Clear? So see, so now what is the condition described? A plane is pass, this is over plane, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। पास कर रहा है 0.25 और -6, दिस इज पासिंग थ्रू दिस एंड इस प्लेन के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन दे दी है ax - y + 4z इज इक्वल। देखिए मैंने आपको शुरू में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा है। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, A1 B नहीं था, ये A2 था,
ए सी कितना है, A3 है, A2 है, A1, A2, A3, A1, A2, इस सारे को हमने डी कहते हैं। तो आपके पास आ गया A1x प्लस A2y प्लस A3z इज इक्वल टू डी। सो ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, जैसे A1, A2। सो व्हेन एवर यू हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन और कोई आपसे पूछते अच्छा जी बताएं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर होते हैं A1, A2, A3। यही कंपोनेंट लिए थे ना नॉर्मल वेक्टर के A1, उसी को हम लेके चले हैं ना। सो अब आपको इस सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दी, इसके बाद इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इसको n1 n स्टार कह लेते हैं इसके नॉर्मल वेक्टर को, कि हमारे पास इसका नॉर्मल वेक्टर n स्टार है। तो देखते हैं आगे। तो इसका नॉर्मल वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड के क्वेश्चन 3, -1 और 2, ये इसके नॉर्मल वेक्टर 3, -1। इसका नॉर्मल वेक्टर हमें नहीं पता, हमें पता चल जाए तो ये वो इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड प्लेन है। रिक्वायर्ड प्लेन मीन वो प्लेन जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर। दिस इज अ गिवन प्लेन, इसके बारे में हमें पता है। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड प्लेन एंड दिस इज अ गिवन। तो प्लेन पैरेलल है as planes are parallel, तो इट्स मीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। n इज पैरेलल टू n स्टार, इसको n कह दिया, इसको n स्टार। तो आप इसको इक्वल भी ले सकते हैं। तो आप उसी क्योंकि पैरेलल है तो जो एक का नॉर्मल, एक प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दूसरे का भी वही होगा। सो 3, -1। लो बच्चों नॉर्मल वेक्टर मिल गया आपको, पॉइंट आपको पहले ही पता था, 2, 5 and -6। So now just write down the equation. What is the equation? X minus x1, A2, y minus y1, A3, z minus z1 is equal to। अब A1, A2, A3 की बजाय ABC भी लिखिए। जनरली ABC यूज होता है आपकी बुक में A1, A2, A3 कुछ भी ले सकते हैं कंपोनेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 to x minus x1, x1 आपके पास 2 है, A2 की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, व्हाट इज A2 हियर, -1, y minus y। A3 हमारे पास क्या आ गया, 2 है, z minus z। So this is a situation we have, this is a required equation। So आपने कंसेप्ट को समझना, जब प्लेन पैरेलल है, ये भी पैरेलल प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, ये भी पैरेलल प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। When the plane is parallel, they have the same normal situation। So this is a situation we have। If someone has any difficulty, तो मुझसे डिस्कस करना। Please ask your difficulties। Hurry up। If there's no difficulty, then we will move forward। Okay, let's see that। What is the next question? The same question. Find the equation of plane passing through origin। The next one is the same one. By 22, 23 are similar. 24 is also similar. 25. Find the equation of plane to this point and having the same trace in xy plane. This same. Okay, see the 26. Now we have a different situation. Question number 26, 27, 28 are similar. 26, 27, 28 are similar. Okay. So what we have? So there are 3 points on the plane. 3 points on the plane. So this is a plane we have. This is a plane we have. So we have 3
points on the plane. One of the point is P, 1, 1, 3. Other is Q, 1, 3, 2. Other is R. Third one is R, 1, minus 1, 2, 1, 3, 2 and 3. So this is क्या करें? अब प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दे दिए गए और कुछ भी नहीं दिया. हमें तो प्लेन के लिए एक पॉइंट चाहिए. चले वो P ले ले, कोई भी ले ले, तीनों में से एक पॉइंट, और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए. एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R. तो अगर P को फिक्स कर लेते हैं तो PQ और QR दो वेक्टर बन जाते हैं प्लेन के अलावा. ये प्लेन के ऊपर दो वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर. सो दीज आर द टू वेक्टर्स अलोंग द प्लेन के ऊपर दो वेक्टर. अगर मैं इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, वो प्लेन के नॉर्मल. सो लॉजिक ये है कि जो 3 पॉइंट्स दिए उनसे दो वेक्टर बना लें, किसी एक को फिक्स करके. सो यू हैव अ 3 पॉइंट ऑन द प्लेन, makes a 2 vector with the plane by fixing any one of the points. Suppose P is fixed point. PQ and PR are the 2 vectors along the plane. If you take the cross product of these 2 vectors, by the definition of the cross product is always normal to the plane. वो normal होगा plane. So ये आपका normal आ जाता है. So the cross product basically वो इनका normal vector बन जाएगा. वो ऐसा, क्योंकि cross product physically is a vector that is normal to the plane containing that vector. तो वो जो वेक्टर्स के जो जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होते हैं बाय डेफिनेशन. सो अगर वो परपेंडिकुलर है तो सिचुएशन आपकी क्लियर है. जी बच्चे यहाँ तक देख लें, किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं. सो आपने क्या किया, PQ वेक्टर निकाल ली. सो ये है PQ वेक्टर, Q माइनस P. व्हाट इज PQ वेक्टर? 1 minus 1 0, 3 minus 1 2 and minus 1, 3 minus 1 2 and 2. P है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 3 and 2. So 2 minus 3 is minus. PQ PR PR 1 minus 1 0, minus 1 और minus 1 minus 2, 2 minus 3 minus. So this is PR vectors. So vector मिल गए. Take their cross product. PQ cross PR. I J K PQ आ गया 2 0 minus 1 2 0. अगर कोई स्टूडेंट यूं करता है, इसको चेंज कर लेता है, पी आर क्रॉस पी क्यू का, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं. वो भी नॉर्मल वेक्टर ही होगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. आंसर वेरी कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह भी लेंगे वो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा. सो इस एन को, डिटर्मिनेंट को ओपन करें, यू विल गेट दिस वैल्यू -2 0 एंड 3. ये नॉर्मल वेक्टर आ गया. पॉइंट आप कोई किसी को भी ले लें, पी ले लें, क्यू ले लें, आर ले लें, लेकिन जो फिक्स किया होता है वही लिया कर. ये फिक्स पॉइंट है जिसको वर्टेक्स बनाया था ना आपने, यहाँ पे दोनों वेक्टर ज्वाइन करती है. पॉइंट भी आ गया, ये भी आ गया. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन x minus x1 प्लस a2 into x minus x प्लस a3 into x minus x3 इज इक्वल टू. कंसेप्ट ये है कि 3 पॉइंट्स है तो उनसे वेक्टर बना दें. वो वेक्टर तो प्लेन के अलाउंग होंगे. आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. दैट विल बी द नॉर्मल टू द. तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है तो ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. पॉइंट आप तीनों में से कोई भी एक ले लेते हैं. मैंने इसी को ले लिया जहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स मैंने ज्वाइन किए गए वर्टेक्स. सो अप्लाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड. 28 भी इसी तरह. So up till 42 we are done. Then we have the equation of line, that is also done. Find the parametric equation of line. So up till 50, if someone has any difficulty, then please. Up till 50. Just a moment. Please ask your question. Question kindly. What was the question, Mohammed Hassan? Okay, you say normal vector repeat kar dein. This is your question.
So if you have the two vectors A and B, if you have two vectors A and B in a plane, when you take the cross product of these two vectors, that is always a vector normal to the plane containing A and B. This is a definition of a class. So we use that definition. Because we have two vectors along the plane, we take their cross product, we have the vector that is normal to them. So we get the normal using the cross product. Clear? Okay. Ishaq. क्यू एंड पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको नॉर्मल वेक्टर कंसीडर किया है सर, इसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता सर? Dot product is never perpendicular to the plane. Cross product is always perpendicular to it. We need a vector that is normal to the plane. So that is only you can get through cross product, not through dot product. Because every product has its own geometrical interpretation. Cross product is a vector that is normal to the vectors A and B. Dot product is not normal to the vector. That's why we cannot use dot product. Clear? Yes, sir. Okay. Who was the second guy? Ishtiaq, what was your question? Please ask your question. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हमने P के पॉइंट लिए हैं, अगर हम Q के पॉइंट ले लें या R के पॉइंट ले लें, फिर भी ये ठीक होगा? Yes, it will be correct. For example, you can Q, P, R, you can make this C. If you take R, P, Q, you can make this. Doesn't matter. So you need a vector, you can take vector by any scheme, by fixing a P, by fixing Q, by fixing R. Doesn't matter. Take the cross product of any two vector, make the vector of your choice. Thank you, sir. Okay, any other question? Okay, if done, see the question number 47 to 49. Please read the statement of the question carefully. सर जी जी सर क्वेश्चन नंबर 20 एक बार रिपीट कर दें. 20. What was the 20? Passing through point P and the normal vector, it has three. Actually, it's complete question. In question number 20, you have three parts. Yeah, three. In 20, you have the three parts. Your first part is you have point. In all the parts, point is same. Point is -2, 5, and -6. Clear? In first part, the normal vector is I, mean 1, 0, 0. In second part, the normal vector is J, 0, 1, 0. In third part, the normal vector is K. So you have three parts. In three parts, the normal vector is 6. The rest is 6. Point is 6. So point and normal vector, you get one equation of plane. For second part, same point, but the normal vector is J. For third point, same point, but the normal vector is K. Clear? Who asked this question? Yes sir. Is it clear, Faz? Faz, or confusion? Yes sir. Done? Yes sir. Oh, thank you. Okay. If everything is done, then I will solve from 47 to 50. Okay. Try to understand in simple language. Seth, give a me a moment. See, if you open your book or copy like that, so there is a line. So one plane is this, one plane is this is the line. So it's mean whenever two planes intersect, it creates a line. So this line is through the intersection of the plane. So इसका मतलब जब भी दो प्लेन इंटरसेक्शन करते हैं उनसे लाइन बनती है. So ये वो लाइन जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनी है.
इसमें हम अगर इसका नॉर्मल वेक्टर ये है इस प्लेन का, ठीक है, क्लियर। दूसरे प्लेन का हमारे पास भी नॉर्मल वेक्टर इसी तरह है, ठीक है। सपोज दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन। सो ये लाइन है दरमियान में हमारे पास, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ वन प्लेन, this is a normal vector of second plane. So it's mean the line will be, this line is perpendicular to the normal of इस ये लाइन जो सी है जो दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के भी। तो प्लेन्स के नॉर्मल है उनके परपेंडिकुलर होगी, ठीक, क्योंकि ये लाइन जनरेट हो रही है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से। जब देखिए इस तरह आप मिलाते हैं तो इसी दिस इज अ प्लेन। So whenever two planes join, their intersection is always a line. आप अपने घरों में देखें जहाँ पे दो दीवारें ज्वाइंट होती हैं वहाँ पे लाइन बन रही है। So the intersection of two planes you always get the line. अब इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। This is a question. So before I start the question, someone is asking the question. Please ask the question. क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था, then we will start this. So, when we have this scenario, what is a scenario? This is a scenario. We have one plane, we have another plane, this is a normal vector of one plane, this is a normal vector of second plane, this is the line of intersection. This is the line of intersection of the plane. इसकी इक्वेशन हमने निकाली। If you, it is something three dimensional, so practically this is a line that is passing through the intersection of the two planes. See, this is a line. So this is the normal vector of first plane. And there is a normal vector of second plane. Now the angle between line and normal vector is 90 degrees. Suppose the direction cosines of the lines are A, B, C. And we have this, because the equation of planes are given, दोनों planes की equation दी है, इसकी भी, इसकी भी। So इसका मतलब ये normal vector भी पता है, ये भी पता है। So हम इस line की direction को sin निकाल सकते हैं। तो line के direction को sin तो पता चल गया। अब हमें point चाहिए। अब इन line के ऊपर कोई भी point है, line के points के basically intersection of two planes से बनते हैं। So अगर आप intersection of two planes के point निकालें तो आपको line के points पता चलें। So पॉइंट के लिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालना पड़ेगा। वो पॉइंट जहां पे प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो बेसिकली पॉइंट लाइन के ऊपर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इज एक्चुअली दिस लाइन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। इफ यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन यू विल गेट द पॉइंट ऑन द लाइन। सो फॉर नॉर्मल वेक्टर यू यूज द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द प्लेन, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन। सो स्टोरी अभी, सो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ the line through the point. Suppose ये line है, line की देखिए इक्वेशन क्या होती है, पहले तो ये समझ ले हमारे पास x is equal to x1 plus 8, y is equal to y1 plus 8 का हुआ है, a1 का हुआ है, मुझे भूल गया लोकेशन हमने क्या यूज की थी इसमें। Okay, let me check from the notes. I want A1 to use A1 और A2 था, ठीक है, A1 A2t z is equal to z1 A3t। सो दो चीजें चाहिए हमें, एक तो पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर चाहिए अलोंग द लाइन, ये लाइन के डायरेक्शन को साइन a1 a2 है। कैसे निकालें? पहले जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या इक्वेशन दी है? सी का क्वेश्चन नंबर 47, एक प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ -2x plus 3y plus 9z is equal to, ये पहले प्लेन की इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, n1।
दूसरे प्लेन की इक्वेशन उसने ये दी है, जिसको मर्जी वन कह लें, जिसको मर्जी टू कह लें, एनी वन ऑफ देम यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट प्लेन, दिस इज योर सेकंड, दिस इज ऑफ प्लेन. So this is the second equation. If you know the equation of plane, it means you know the normal vectors. Normal vector क्या होगा? ये वाला n1. कोफिशिएंट x y z के, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर दी हो तो x y z के कोफिशिएंट देखिए, पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन के कोफिशिएंट क्या x y z के -2, 3 and 9, -2, 3 and 9. n2 1, -1 and 5. तो ये दो नॉर्मल वेक्टर्स हैं. अब हमने प्रैक्टिकली देखा था जो लाइन के अलोंग होगा वेक्टर, सपोज दिस इज अ वेक्टर अलोंग द लाइन ए वेक्टर, कंपोनेंट a1 a2 a3 है. ये वेक्टर दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा. तो नॉर्मल्स तो ये तो पहला प्लेन का नॉर्मल है -1 -2 तो नहीं, -2 है कि -1 है? -2. अच्छा, so this is a normal vector of the first plane. Thank you. And this is the normal vector of the second plane. So these both normal vectors are perpendicular to each other because the line is along the plane. Line तो plane के ऊपर है और ये plane के perpendicular. इसका मतलब n1 का भी इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, n2 का भी 0. तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको. So what you have. अब मेरा क्वेश्चन जो है, जिस बच्चे ने मैट्रिक पास की, ठीक है, जो बताएगा मैं समझूंगा उसने मैट्रिक पास की. बट यू हैव द सॉल्यूशन, सो आई नो दैट. सो द नॉर्मल वेक्टर इज दिस वन, a1 a2 3. सो n1 dot a is equal to 0. You have one equation, -2a1 plus 3a2 plus 9a3 is equal to 0. This is the equation. Similarly, you have n2 dot a is equal to 0. n2 is 1 minus 2 5 dot a vector a1 a2 a3 is equal to 0. So a1 minus 2 a2 plus 5 a3 is equal to 0. So we have the two equations and three variables. क्या करें? So what we do now? So we have in metric we read very famous method that is called the cross product method. Cross प्रोडक्ट मेथड. और उर्दू में जिन्होंने पढ़ा था वो उससे क्या करते थे, ज़रबे चिल्ले पाए मेथड, ज़रबे चिल्ले पाई का तरीका. तो उसमें क्या होता था, आप सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लेते थे, a1 डिटर्मिनेंट, a2 अगला कोफिशिएंट, इसके साथ माइनस लिख लेते थे, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने साथ किया. अब पहले वाले में a1 को हाइड कर ले, छुपा के, a1 को छोड़ के a2 और a3 के कोफिशिएंट लिखने, पहले a2 के फिर a3 के. सेकंड वाले में a2 को छोड़ दें, a1 के कोफिशिएंट और a3 के. थर्ड वाले में a3 को छोड़ के a1 और a2 के. सो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट था, इसको आप ओपन कर लें. 15 प्लस 18 a2 होगा, तो रेशियो मिल जाती है आपको, -10 -9 a3 -10 a1 a2 a1 over 3 33 a2 over is 19 a3 over is -1. So if you see, so in this way you can find your normal vector. Other way is that
n1 इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। एक और भी तरीका है, n1 इस प्लेन के नॉर्मल है, n2 इस प्लेन के नॉर्मल है। आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्या हो जाएगा, प्लेन के लॉन्ग वेक्टर आ जाएगा और वो वेक्टर इस वेक्टर a के पैरेलल होगा। तो n1 क्रॉस n2 इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। मैंने नोट्स में n1 क्रॉस n2 के थ्रू निकाला है, लेकिन आप इस तरह दोनों से सेम ही निकलेगा, डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास। माइनस का डिफरेंस आ सकता है डायरेक्शन की वजह से, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है। तो चॉइस इज योर। अब आपको पता चल गया आपने डायरेक्शन को साइन कैसे निकालें, या तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकाल लें, इस तरह निकाल लें, या n1 क्रॉस n2 निकाल लें। तो n1 क्रॉस n2 पैरेलल वेक्टर आ जाएगा a, तो आप उसको a ही किया। अब पॉइंट कैसे निकालें, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन्स के, ये हम कैसे निकालें ताकि हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल सके, P मिल सके x1 y1 z1 के। उसके लिए देखेंगे आपके पास चॉइस है, चॉइस इज योर, कि आपके पास दो इक्वेशंस ऑफ प्लेन है। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है -2x + 3y + 9z = 0। दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, आप क्या करें, आप z को पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें, मैं आसानी के लिए 0 पुट, क्यों, ताकि दो वेरिएबल्स आ जाए। आप y को भी 0 पुट कर सकते हैं, आप z को कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल नंबर 0 पुट कर लेंगे, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब इसको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपके पास x और y की दो वैल्यू है, y x की वैल्यू आपके पास, इन दोनों को सिमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे, आपके पास x 0 आ जाएगा और y आपके पास 4। सो आपका पॉइंट क्या बन गया, x 0 y 4 z 0, ये पॉइंट मिल गया P1। नॉर्मल वेक्टर जो सा लाइन का जो वेक्टर है वो n1 क्रॉस n2 के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, और आपने रेशो से भी निकाला है, तो आता है 33 -19 और +7। So yeah. See if someone has any difficulty, then please discuss. x0 z0 क्यों किया है? आप ये देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल निकल सकते हैं, तीन तो नहीं निकल सकते, लेकिन इक्वेशंस में तीन वेरिएबल, तो आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर ली। आप z को 0 ले लें, 1 ले लें, आप x को ले लें, किसी एक वेरिएबल को ले लें, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप z ही को लें, ठीक है, यू कैन कंसीडर एनी वेरिएबल। क्लियर होगी बात? सर ऐसे तो जो वैल्यू डिफरेंट लोग डिफरेंट सपोज करेंगे तो डिफरेंट आंसर सेम आंसर सेम आएगा, आंसर वेरी कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच, ठीक है, आंसर वेरी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ देखिए हमारी क्रॉस प्रोडक्ट से आया था 33 19 और -7, और उधर जो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है आपके नोट्स पे वो भी यही आ रहा है 33 19 और 7। तो प्लस माइनस का डिफरेंस है वो डायरेक्शन की वजह से, और कुछ। सो यू गेट द सेम आंसर, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, हरी अप। यस प्लीज आस्क। अच्छा बच्चों, नोट्स में जरा करेक्शन कर लीजिएगा, +19 है, ठीक है, और ये +1। तो पेज नंबर 10 पे +19 और +1 है, कैलकुलेशन वो प्लस का साइन का, ये 4 - 3 1 बन गया, ये नॉर्मल वेक्टर्स आ गया। पॉइंट अभी आपने निकाला है 0 4 0, तो आप इक्वेशन अप्लाई। सी इफ समवन हैज एनी डिफिकल्टीज सो प्लीज आस्क दिस। सो दिस इज वेरी कंसेप्चुअल काइंड ऑफ, so stop the difficulty is, so you have a normal vector, you have a plane, so this is our normal vector,
This is a point. So x is equal to x1 plus a1t. This is your a1, a2, a3. This is your x1, y1, z1. So x1 is y यहाँ 0. पे माइनस 4 होगा तो Sorry. Just a y माइनस एक मिनट. y1 is equal to plus 4. So minus y plus 4. So if some arithmetic mistake, then you can correct by yourself. क्योंकि वो सारा नहीं समझ में- सर आपने वो पॉजिटिव 5 किया, नेगेटिव साइन था सर वो 5 के साथ। Just a minute. Just a minute. कोई बताना चाहेगा any method where how we prove two vectors are parallel? Suppose one vector is A, other vector is B. एक तो तरीका ये होता था कि आप उनके कंपोनेंट की रेशियो ले लें, सबसे आसान है। I की I से ले लें, J की J से ले लें, K की K से ले लें। अगर कंपोनेंट की रेशियो सेम आ जाए तो प्रूव हो जाता है वेक्टर्स पैरेलल। सिंपलेस्ट में। दूसरा, एक वेक्टर कांस्टेंट टाइम दूसरा वेक्टर होता है। दूसरा, आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाल लें, या तो एंगल 0 आ जाएगा या 180 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल है। क्लियर है? So there are many methods. Simplest one is this. Take the if the vector are parallel, the ratio of their component is same. तो अब उसने कहा शो करेंगे प्लेन पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होगा, एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर होते हैं 4, -2, 6, ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर -6, 3 एंड -1, ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर था। अब ये प्रूव करना है प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल्स को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो एंगल बिटवीन प्लेन इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। दो प्लेन्स के दरमियान वही एंगल होता है जो नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान होता है। आप करें क्या, इन पैरेलल प्रूव करना है तो मैंने क्या किया, इनकी रेशियो ले ली, दोनों नॉर्मल वेक्टर। दोनों तरीकों से किया लेकिन सिंपलेस्ट ये, आई की रेशियो आई से जे की के, दोनों तीनों की रेशियो सेम आ गई है, तो इसका मतलब नॉर्मल्स आर पैरेलल, तो वेक्टर पैरेलल। अब किसी एक प्लेन पे पॉइंट ले लें, चॉइस आपकी है। एक इक्वेशन है, एक वैल्यू निकल सकती है। आपने एक्स भी 0 ले लिया, वाई भी 0 ले लिया, जेड की वैल्यू निकल सकती है। ये पॉइंट आ गया प्लेन पे। अब जरूरी नहीं है 0 लें, आप एक्स को 1 ले सकते हैं, वाई को 2 ले लें, एक्स को -1 वाई, सो कुछ भी ले सकते हैं। आप वाई जेड की वैल्यू ले लें, एक्स की निकाल लें, चॉइस इज योर। कोई दो वेरिएबल आपने कुछ फिक्स कर लें, तीसरे की वैल्यू निकालें, वो पॉइंट आ जाएगा प्लेन की। 0 से जरा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ट्रिक ये। अब आपको ये पॉइंट पता चल गया, अब नीचे वाला प्लेन की इक्वेशन पता है, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालें, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन की ऊपर है तो दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपने ऊपर वाले प्लेन के ऊपर जो सा है वो पॉइंट ले लिया। ये दोनों प्लेन पैरेलल थे, तो ऊपर वाले प्लेन पे पॉइंट ले लिया, नीचे वाले प्लेन की इक्वेशन ले ली। सो पॉइंट से जो प्लेन का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, ये वाई की जगह वाई 0 पुट कर दिया, जेड की जगह जेड की वैल्यू और कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स वाई जेड है, डिस्टेंस निकाल लिया पॉइंट से प्लेन का। तो वो बेसिकली दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है। Now distance between plane is the distance of this point to this plane। एक पॉइंट, एक प्लेन पे पॉइंट ले लें, दूसरे पॉइंट का प्लेन का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लें। सो वो जो दो पैरेलल प्लेन थे आपके पास, उन दोनों पैरेलल प्लेन के दरमियान डिस्टेंस है। ये कंसेप्ट। जी प्लीज, if someone has any question please ask it। तो ये प्लेन पैरेलल कैसे होंगे? आपने कहा था कि परपेंडिकुलर है, एक दफा ये फिर समझा रहे हैं इसमें। क्या चीज? तो ये जो प्लेन, दो प्लेन थे वो पैरेलल कैसे होंगे सर? आपने कहा था कि ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। नहीं, मैंने कहा सब प्लेन, द एंगल बिटवीन प्लेन इज एंगल बिटवीन द, ये मैंने कहा। उसने कहा है प्रूव करें प्लेन पैरेलल। प्लेन कैसे पैरेलल होंगे? जब उनके नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो मैंने पहले प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, दूसरे का भी निकाल लिया। देखिए दो प्लेन्स की इक्वेशन, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है ये नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स निकालिए। 4 -2 6 -6 3 और 9। अब रेशियो ले ली आई की आई से, जे की के से। अगर तो ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे तो रेशियो सेम आ गई। देखिए मैंने रेशियो ली, आई की जे से जे सेम आ गई, तो इसका मतलब प्लेन आ गया। परपेंडिकुलर हो सकते हैं सर? हाँ हो सकते हैं।
अगर नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दोनों नॉर्मल्स वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो प्लेन भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अभी तो उसने क्वेश्चन में कहा ना शो दैट दे आर पैरेलल, तो इसलिए मजबूरी थी। अगर परपेंडिकुलर का कहता तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो प्लेन भी परपेंडिकुलर होता है। यस सर। ठीक है, जैसे आपके कमरे की दीवारें आपस में परपेंडिकुलर होती है जहाँ पे ज्वाइंट करती है। जी सर। तो अगर आप दोनों दीवारों पे पेंसिल रखो, समझो वो नॉर्मल वेक्टर है, तो वो भी परपेंडिकुलर है। समझ आ गई? जैसे एक कॉपी है मेरे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर बनाऊं नीचे वाले प्लेन का, तो ये नॉर्मल वेक्टर है नीचे वाले प्लेन। ऊपर वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ये। तो देखो दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। बिकॉज दोनों प्लेन, अगर कॉपी को यूं खोलेंगे तो प्लेन परपेंडिकुलर आएंगे ना, ठीक है। इस तरह जरा सादा से खोल, तो ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो इनके नॉर्मल, जब प्लेन इस तरह पैरेलल हो जाते हैं तो फिर इसका नॉर्मल वेक्टर ये, इसका नॉर्मल वेक्टर ये, नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल हो जाते हैं। अगर प्लेन किसी एंगल पे है, तो इफ क्वेश्चन ये दिया जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, तो पहले नॉर्मल का प्लेन का देखें, दूसरे प्लेन का नॉर्मल देखें, जो उनके नॉर्मल्स के दरमियान एंगल होगा वही प्लेन्स के दरमियान एंगल होगा। द एंगल बिटवीन प्लेन इज द एंगल एक्चुअली बिटवीन देयर नॉर्मल्स। If the normal are parallel, it means plane are parallel. If the normals are perpendicular, it means the plane are perpendicular. If normal are at certain angle, it means the plane are at certain. Clear? Yes, please. Any other question? Okay, we have less than 1 minute for this session. We will move to the next session, fourth session. Last session, this one. Okay. For the shortest distance between two lines. Remember, the shortest distance is perpendicular. So if you have a line, you have the vector along first line is P1, Q1. Second line के along आपके पास vector, suppose you have these two lines. Example इसमें proof दिया हुआ, आप देख सकते हैं P1, Q1. This is a vector along this line. P2, Q2 is a vector along this line. Then the shortest distance is P1, Q1. Scalar triple product of P2, Q2 over P1, Q1 cross P2, Q2 magnitude into the vector from first line to second. एक component होता है basically. Normal vector का component होता है along P1, P2. ये shortest distance here. That is a component of the vector P1, P2 along the normal vector. इसकी magnitude जो होती है वो आपके पास shortest distance है. N dot P1, P2. So अगर दो लाइंस हैं, आपने दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, क्योंकि अगर लाइन कुछ यूं है तो कहीं पे डिस्टेंस कम है, कहीं पे ज्यादा है। क्योंकि जब लाइन स्पेस में होती है तो जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल ही हो, तो स्पेस में लाइन नॉन पैरेलल के दरमियान भी डिस्टेंस होता है, तो स्पेस तो बहुत बड़ी है। आम प्लेन में अगर दो नॉन पैरेलल लाइन है तो हम कहते हैं वो इंटरसेक्ट करती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। टू नॉन पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे स्क्यू लाइंस करती है। तो स्पेस में अगर दो लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप दोनों लाइंस का नॉर्मल वेक्टर निकालें, और जो P1, P2 वेक्टर है पहली लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान, उसका कंपोनेंट वेक्टर। तो इसका फार्मूला ये बन जाता है, पहली लाइन के लॉन्ग वेक्टर, दूसरी लाइन के लॉन्ग वेक्टर, अब पहली लाइन से दूसरी लाइन का वेक्टर ओवर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स की विच आर अलोंग द लाइन P1, P2. So if you remember this formula, then you can find the shortest distance between. For example, so we have along first line we have point AB, along second line we have point C. So first take the vector along first line. AB is a vector along first line. This is along second line, and C to A is a vector from first line to second. If you have these three vectors, then apply this formula. Take the cross product of the vector along the line AB cross C.
and then apply, take the magnitude and then apply the formula. What is the formula for the shortest distance? Vector along the line, vector from first line to second line over the magnitude of the vector along the line. So this is a scalar triple product. Scalar triple product आपने पढ़ा है कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड. सो ये आपके पास स्केलर ट्रिपल फार्मूले में वैल्यूज पुट किए आपके पास आंसर है. जी प्लीज. सर ये स्पेस में जो डिस्टेंस फाइंड करने वाला सर थोड़ा सा रिपीट कर दें. If you have two lines in space. Suppose we have two lines in space. This is your first line. This is your second line. The vector along the first line is AB. The vector along the second line is CD. Clear? So if you have two lines, first line is L1 in space passing through point A and B. Second line is L2 passing through point CD. This is a vector along first line, second line, this is a vector along first line. And this is the vector from first line to second line. Shortest distance D is the perpendicular distance. That is the component of vector AC, this curve, along normal vector. AC का नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट वो, क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर ये बनेगा, तो फिर आप ये 90 डिग्री ले लेंगे एंगल पे इसके लॉन्ग कंपोनेंट में ये नॉर्मल. तो ये फार्मूला है. D is the distance of the normal vector from it. इसकी मैग्नीट्यूड तो वो बनेगी क्या, तो ये बनेगी AB वेक्टर scalar triple product of vector along first line, vector along second line, and vector from first line to second line over the magnitude of the cross product of the vectors along the line. जो lines के along vector उनकी cross product. ये आपके पास फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कई तरीके होते हैं लेकिन दिस इज द फार्मूला गिवन इन योर बुक. तो मैंने फार्मूले को यूज कर लिया, अदरवाइज आप नॉर्मल निकाल के काफी लंबे प्रोसीजर, उसी फार्मूले को मैंने अप्लाई किया. जी, एनी क्वेश्चन? जी प्लीज. सो वही मैंने किया. 3 पॉइंट थे लाइन के लॉन्ग, ए बी पॉइंट है, सी डी पॉइंट है. मैंने ए बी वैक्टर भी निकाल लिया, सी डी भी, और एक लाइन से दूसरी लाइन के लॉन्ग जो वेक्टर जा रहा है सी ए वो भी, तीनों वेक्टर्स निकाल लिए. लाइंस के लॉन्ग जो वेक्टर्स थे ए बी और सी डी, ये दो लाइंस के लॉन्ग वेक्टर थे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और मैग्नीट्यूड भी ले लिया. और जो तीनों वेक्टर्स थे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया. फार्मूले में वैल्यू पूरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ही आंसर आएगा. So when you see the formula and the question body easily solve किए हैं मैंने, you will get that. ये पेजेस मौजूद है ना आपके पास, पेज नंबर 13 अपलोड हुआ है. -4 + 3t z is equal to 1 + 2t. ये आपको ला. This line is given and the point is given here. 2, 1, -2. So this line is passing through which point? ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं लाइन में, जिनके साथ टी नहीं होता वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं. क्या है? 3, -4 and 1. क्या? So what is the vector along this line? A vector. T के कोएफिशिएंट्स -2, 3 and 2. So BC vector is basically your A vector. And this
BP vector is this is your AP vector. So distance B is the point on the line to the distance from the point. AP vector cross A vector over the magnitude of A. So this is a point. क्लियर होगी बात आप? जी सर। क्यों? जी सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो नॉर्मल कर दें सर। हाँ, you can do that. No problem. Any other problem? So from my side, this exercise, this chapter is finished. So इसमें हमने equation of line और plane ही करने थे. Our next topic is the partial derivatives, chapter number 12. So this was the concept of line in space and plane in space. So what we read here, first we read about the equation of line to 1 point, 2 points. Then we find the intersection between two lines. After that, we find the angle between. Then we read the equation of plane. Then we see how we can find the equation of plane. Then equation of line through the intersection of the plane. How we can prove the planes are perpendicular, the plane are parallel. If you want to find the angle between the plane, how we can find the angle between the planes. So this was the story. This was the outcome of these chapters. If someone has any difficulty, we can arrange one more session about this equation of line and plane. From my side, I am done with this thing. If you have any kind of difficulty, we can discuss today. We can discuss in next session.